Hello students, today we will have a new chapter from your book My English Garden and the chapter name is Daffodils. This is ninth chapter from your book. Basically this is a poem which is written by William Wordsworth. In this poem, William Wordsworth is talking about a flower which is found in mountain area, in valleys. So before I start explaining the poem, let me just tell you how this idea came in his mind, in the poet's mind, to write down about the daffodils flowers. So one day what happens that he goes to he goes to a lake with his sister, and there what he sees all around them डेफिडल्स, मूविंग डेफिडल्स. वो अपने इर्द गिर्द जब देखता है उस माउंटेन एरिया में, वैली में, उस झील के पास, लेक के पास, दैट डेफिडल्स फ्लावर्स आर moving or shaking their heads in the air, in the slow air, in the slow wind, and suddenly he thinks of writing down some thoughts about daffodils, and he creates a beautiful poem that time. So let's see the question which is coming from this chapter for us. Have you ever seen an image that you have felt like describing in such a way that the person who hears the description can in turn visualize the scene? William Wordsworth has done just that in this poem. So now here the question is that have you ever imagined something by which you can make someone visualize your description? It means कि कभी आपने कुछ ऐसा सोचा या इमेजिन करा या कुछ ऐसा देखा जिसको देख करके आपने जो भी डिस्क्राइब करा उस डिस्क्रिप्शन को कोई और अगर सुनता है तो उसका पूरा सीन नज़र आ जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इफ़ यू टेल समबडी अबाउट एन इंसिडेंट, रोड इंसिडेंट और एक्सीडेंट, आप किसी से रोड एक्सीडेंट के बारे में बताते हो जो आपने अपनी आँखों से देखा है, एंड व्हेन यू स्टार्ट टेलिंग अबाउट द इंसिडेंट एंड द वे यू टेल समवन अबाउट दैट इंसिडेंट, कि वो जो सुनने वाला, जो ऑडियंस है, जो आपको सुन रहा है, वो इस तरीके से उस सीन को इमेजिन कर ले कि उस सीन में वो खुद को मेन विटनेस माने. मेन विटनेस का मतलब हो गया कि आप जिस तरीके से बताओ, आपका बताने का तरीका इतना स्ट्रॉन्ग और इतना इफ़ेक्टिव हो कि सुनने वाले को ऐसा लगे कि वो सीन आपने नहीं, उसने खुद अपनी आँखों से देखा हो, उसने खुद विजुअलाइज़ करा हो. सो कभी आपने ऐसे कोई चीज़ को देखा और उसको डिस्क्रिप्शन दिया किसी को, बिल्कुल ऐसा कि उसने खुद उस साक्षात उस चीज़ को देखा हो. तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ ऑल अप टू योर इमेजिनेशन, अप टू योर थाट्स, कि आप क्या सोचते हो, क्या इमेजिन करते हो, एंड योर क्रिएशन, आप इस चीज़ पर क्या क्रिएशन देते हो. सो नाउ द क्वेश्चन, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि क्या कभी आपने कुछ ऐसा देखा जिसके डिस्क्रिप्शन से ही विजुअलाइजेशन सीन का मिल जाए पूरा. जस्ट थिंक and then tell. Okay, now comes to the poem. Here when you read this poem, basically you will come to know that how the poet has tried to make us visualize what he has seen himself a long back. बहुत सालों पहले जो उसने अपनी आंखों से देखा, वो हमें इस तरीके से अपनी पोम के थ्रू दिखाते हैं कि हमें ऐसा लगेगा कि हमने अपने आप से उस सीन को देख लिया हो. So this is the art विच इज़ रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, एंड इट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम दर्स. ये एक तरीके का वे होता है, एक तरीके की लैंग्वेज होती है जो अगर हमें आती है, जो हमारी पर्सनालिटी में एक डिफरेंट एडिशनल चीज़ें ऐड करती है, या फिर आप कह सकते हो हमें डिफरेंट बनाती है अगर हमारा वे ऑफ डिस्क्रिप्शन या वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इस तरीके का हो कि लोग हमारी बातों को विजुलाइज कर सके और समझ सके. नाउ विल स्टार्ट द पोम फर्स्ट.
I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So now students, you have to first recite the first stanza as we have already done in the class, but still you should try, because again this is something which is most important part of a language. If you speak something straightforward or having no expression, that means nothing. It means बोलने का कोई मतलब नहीं है. So when you are speaking, you should remember that your feelings or emotions, your expression should be connected to the language. आप जो बोल रहे हो उसके साथ साथ जो आप बोल रहे हो, that should come from your heart. And that when will it come? When you really feel the scene. जब आप चीज़ों को feel करके बोलोगे, scene को feel करके बोलोगे, then only this thing can be possible. So I want you all to speak or to recite this poem, at least first stanza, so that I can tell you where you need to work upon. So repeat after me. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Now, we'll first understand the meaning of new words which are given in the first stanza. So, the meaning of wandered. Wandered means to move around somewhere without purpose और without aim. जब हम किसी एम के बगैर जब हम इधर उधर घूमते हैं, वंडर्ड करते हैं, उसको घूमते हैं, उसको हम वंडरिंग कहते हैं, राइट. सो अब हियर द पोइट इज टेलिंग अबाउट हिज विजिट टू अ माउंटेन एरिया. वो अपनी माउंटेन जब वैली घाटी या माउंटेन एरिया में जाता है, वहाँ पर वो क्या फील करता है वो बताता है यहाँ पर. तो द मीनिंग ऑफ वंडर इज़ क्लियर दैट घूमना फिरना. एंड लोनली इज़ अकेले में जब हम अलोन वॉक करते हैं, टहलते हैं, घूमते फिरते हैं, उसको हम लोनली कहते हैं. द मीनिंग ऑफ फ्लोट्स इज़ टू मूव ऑन और टू तैरना, जिसको हम कहते हैं तैरना या फ्लो करना, बहना. तो फ्लोट का मतलब होता है तैरना. वेल्स का मतलब होता है वैलीज़. एंड हिल्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पहाड़ी जो स्मॉल माउंटेन्स होते हैं विच आर फाउंड ऑन द बेस ऑफ द बिग माउंटेन्स. जो बिग माउंटेन्स के बेस में पाया जाता है वहीं पर वैलीज़ होती है, वहीं पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी होती हैं. एंड द मीनिंग ऑफ क्राउड. क्राउड का मतलब होता है फुल ऑफ. क्राउड का झुंड और ग्रुप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का झुंड या ग्रुप. होस्ट. होस्ट इज़ अ पर्सन हु कंडक्ट्स और हु एंटरटेन्स समवन. किसी को एंटरटेन करता है उसको होस्ट कहते हैं. And daffodils, I have told you already, daffodils are the flowers which are found in hills. The meaning of beneath is below, किसी चीज़ के नीचे, काफ़ी नीचे. Fluttering means to to flatter, किसी चीज़ को फ्लैटर कर. फ्लटरिंग मीन्स होता है फड़फड़ाना, और टू शेक समथिंग, किसी चीज़ को हिलाना. एंड ब्रीज मीन्स स्लो विंड, बहुत ही माइल्ड विंड, बहुत ही स्लो धीमी जो हवा होती है उसको ब्रीज कहते हैं. हल्की फुल्की जो जिस हवा में अच्छा लगता है. वी हैव सूदिंग स्मेल एंड वी फील लाइक वॉकिंग इन ब्रीज. हमें हल्की फुल्की जो हवा होती है उसमें, इवन इट हैपन्स इन द मॉर्निंग मोस्ट ऑफ द टाइम. जो मॉर्निंग का जो माहौल होता है उसमें ब्रीजिंग होती है, बहुत हल्की हल्की हवा चलती है एंड वो बहुत ही हमें फ्रेश करती है. नाउ विल अंडरस्टैंड द कंप्लीट पैराग्राफ. सो आई वंडर. नाउ हियर द पोइट सेज दैट
वन डे when he went to the valley with his sister, अपनी सिस्टर के साथ जाता है. So there what he did, he started wandering all alone. वो अकेले घूमना फिरना शुरू कर देता है. जैसे हम कहीं पिकनिक पे जाते हैं, देन हम फैमिली के साथ बहुत देर तक नहीं रुकते हैं. वी स्टार्ट मूविंग हेयर एंड देयर जहाँ पर हमें अच्छा लगता है. सो लीविंग हिज सिस्टर ही स्टार्टेड मूविंग अलोन एंड उस वैली में अकेले घूमना फिरना शुरू कर देता है. एंड ही फाउंड हिमसेल्फ एज अ क्लाउड. वो अपने आप को एक उस क्लाउड की तरीके से पाता है, उस बादल की तरीके से पाता है. दैट वॉज फ्लोटिंग ऑन हाई इन द वैलीज और ऑन हिल्स. और वो क्लाउड जो वैलीज़ में, घाटीज़ में घूमते फिरते रहते हैं और ऊंचाइयों पे उड़ते रहते हैं, तो राइटर को ऐसा लगता है कि ही इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्लाउड मूविंग इन द वैलीज ऑल अलोन. अकेले मूव कर रहा है, अकेले घूम फिर रहा है, जैसे क्लाउड अकेले ही मूव करते रहते हैं. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Now what he says that suddenly when I was moving there, when I was walking all alone there like a cloud, I saw a crowd, I saw a group of daffodils. मैंने गोल्डन डैफोडिल्स फ्लावर्स के ग्रुप्स देखे, यानी झुंड देखा, बहुत बड़ा झुंड देखा. और वो ऐसा लग रहा था कि वो होस्ट है. होस्ट का मतलब है, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे एंटरटेन कर रहा है, वो मेरे को होस्ट कर रहा है. वो जो डैफोडिल्स का झुंड है, गोल्डन कलर का, जो सुनहरे रंग का जो डैफोडिल्स है, ग्रुप है, फूलों का झुंड है, वो मुझे होस्ट कर रहा है. और वो झुंड, फूलों का समूह कहाँ पर है? बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज. और बिसाइड द लेक द ग्रुप द क्राउड ऑफ डैफोडिल्स वॉज बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्री. ट्री के बगल, ट्री के नीचे और लेक के यानी झील के बगल में होता है. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे होस्ट करते हुए, मुझे एंटरटेन करते हुए वो फ्लटरिंग कर रहा है. इट वॉज शेकिंग द ग्रुप ऑफ daffodils was shaking or fluttering in the air and dancing in the breeze. वो शेक कर रहे थे, स्वे कर रहे थे, हिल डुल रहे थे. ऐसा लग रहा था कि वो डांस कर रहे हैं और मुझे एंटरटेन कर रहे हैं. So seeing everything happening before his eyes, the poet William Wordsworth was so happy. He was so glad to be with daffodils. वो daffodils flowers के साथ बहुत ही अपने आप को खुश पा रहा था. So this is the first stanza. I hope that you have understood it very well, and meaning I will be telling you along with the stanzas only, though I have given here the screenshot of word meaning also, so that you can understand. And now the next stanza will be done in the next video. And children, now for today the question is that in the first stanza, what does the poet talk about? The first stanza, poet किसके बारे में बात करता है? And where is he right now? वो अपने आप को कहाँ पाता है, वो कहाँ की बात कर रहा है, किस जगह की बात कर रहा है? What is the location of the scene? What is the scene all about? इस scene में क्या क्या दिख रहा है आपको, और पोइट कहाँ पर गया हुआ है, या फिर पोइट किसके बारे में बात कर रहा है? These 3 questions you have to answer. Okay children, thank you. Take care.